हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट इन्वेस्टर। मैं हूं आपके साथ चारू गर्ग। आज आपको बताऊंगी गिफ्ट निफ्टी क्या है और आखिर इसका गिफ्ट निफ्टी नाम कैसे पड़ा और ये ट्रेडर्स के लिए कैसे बेनिफिशियल है। आज इस टॉपिक पर बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करने से पहले आपको वीडियो को लाइक करना है। जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें सो दैट मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। गिफ्ट निफ्टी जो है वो SGX निफ्टी को नाम दिया गया है। SGX निफ्टी जो वो इंडिकेटर था निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का जो सिंगापुर एक्सचेंज में ट्रेड करता था और साथ ही इंडिकेट करता था डोमेस्टिक इंडेक्सेस जो हो गए हमारे निफ्टी सेंसेक्स कि वो कैसा परफॉर्म करने वाले हैं। द SGX निफ्टी बेस्ड ऑन इंडियाज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी इंडेक्स इज द फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर इनिशिएटिव कनेक्टिंग इंडिया and Singapore's capital markets. With its shift from the Singapore Exchange to NSE's International Exchange located in Gift City, the index has also been renamed the Gift Nifty. So Gift Nifty जो है वो rebranded version है SGX Nifty का, यानी कि जितनी भी open positions थी SGX में वो shift कर दी गई है NSE International Exchange ISFC Limited, यानी कि NSE IX भी जिसको कहते हैं, with effects from 3rd July 2023. NSE IX is a subsidiary of NSE based in Gift City in Gujarat. इसका मतलब जितने भी US डॉलर डिनोमिनेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स थे निफ्टी फ्यूचर्स के वो अब NSE IX में ट्रेड होंगे इंस्टेड ऑफ सिंगापुर एक्सचेंज। NSE IX works under the regulatory framework of the International Financial Services Center Authority. Currently जो है गिफ्ट निफ्टी में 4 प्रोडक्ट्स आते हैं। फर्स्ट इज गिफ्ट निफ्टी 50, सेकेंड इज गिफ्ट निफ्टी बैंक, थर्ड इज गिफ्ट निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फोर्थ इज गिफ्ट निफ्टी IT डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट। जितने भी ओपन SGX निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो सारे सीज कर दिए गए ट्रेड करने के लिए ऑन June 30th. The entire volume of these contracts was shifted to NSE IFSC and SGX Nifty would eventually be delisted from the SGX as well. The move of the SGX Nifty to Gujarat provides an alternative way to access US dollar denominated Nifty derivatives. On 3rd July, trading at this US dollar denominated Gift Nifty started with an open interest of $8.05 billion in Nifty futures and of $1.05 billion in Nifty options from Singapore Exchange International clientele, executing over 30,000 trades in a single session. गिफ्ट निफ्टी जो है अब 2 सेशंस में एवरी डे ऑपरेट करेगा। द फर्स्ट सेशन वुड बी फ्रॉम 6:30 AM to 3:40 PM and the second would be for attracting the European and American investors and the timing will be from 4:35 PM to 2:45 AM as per the Indian Standard Time. चलिए अब जानते हैं कि गिफ्ट निफ्टी ट्रेडर्स को कैसे बेनिफिट करेगा। तो पहली बात तो ये है कि इंडिया का जो एम है, एक तो इंडिया सेंट्रिक ट्रेडिंग हो गया और दूसरा जो हमारे ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स हैं यानी कि दुबई, मॉरिशस और सिंगापुर, इनसे compete करना। इंडिया एम्स टू रेज फंड्स फॉर इंडियन प्रोडक्ट्स, गेट्स मार्केट्स ऑन शोर and promote the setting of prices of Indian products in dollar terms in all time zones. So basically इंडिया का जो मोटिव है वो इंटरनेशनलाइज करना है इंडियाज डेरिवेटिव ट्रेड्स। दूसरी बात, फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी ये बेनिफिट करेगा who will be now eligible to avail exemptions from the securities transaction tax, that is STT, commodity transaction tax, GST, dividend distribution tax and capital gains waivers that have been made available to entities operating in the GIFT Special Economic Zone. NSE International Exchange के CEO V बालासुब्रमण्यम ने ये कहा कि ये जो मूव है ये बहुत ही एडवांटेजेस है फॉर नॉन रेजिडेंट प्लेयर्स के लिए भी, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा जो एंटिटीज हैं इंडिया से which set up a subsidiary there, those are also treated as non-residents
and will get tax exemptions. एक और ज़रूरी बात, Indian retail investors जो हैं they will not be eligible to trade in Gift Nifty under the liberalized remittance scheme, जिसको LRS भी बोलते हैं. It may be noted that under the LRS, the Reserve Bank of India does not allow the use of $250,000 per year per person for leveraged traders that also include futures and options. अब आखिरी चीज ये भी जान ले कि आखिरकार इस शिफ्ट की जरूरत क्या थी सिंगापुर से इंडिया करने की, यानी कि SGX निफ्टी को गिफ्ट निफ्टी करने की आखिर मेन वजह क्या थी. तो सिंगापुर जो है बहुत ही बिजी ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर है जो कि ऑफर करता है लो टैक्सेशन रेट्स, easy registration and operations facilities. This attracts many overseas traders wanting to avoid the hassle of registration with SEBI, that is Securities and Exchange Board of India. दूसरी important चीज जो SGX Nifty जो traders use करते थे to get an early indication of Nifty 50 before the Indian market opened, taking advantage of the time difference between Singapore and India. यानी कि जो टाइम डिफरेंस है सिंगापुर और इंडिया का, उस चीज का उनको एडवांटेज मिलता था बिफोर ओपनिंग ऑफ द इंडियन मार्केट. तो बेसिकली इंडिया को हब बनाने के लिए और सिंगापुर से भी ट्रेड लाने के लिए इसको ये किया गया है. द वॉल्यूम ऑफ SGX निफ्टी फ्यूचर्स swelled over time, equaling the volume of trade in these instruments that was happening in India. So to keep control of capital, the Indian government felt these trades should happen within India, thus accruing benefits to the nation. एक और ज़रूरी चीज़, ऑफशोर ट्रेडिंग को डिस्करेज करने के लिए और टैक्स फ्री ट्रेडिंग जोन बनाने के लिए ये अटेम्प्ट किया गया है, एंड टू इंटीग्रेट द नेशन इनटू द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम. सो आज इस वीडियो में इतना ही. आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको बहुत सारे लाइक्स दे दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं. आज के लिए इतना ही. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.